Assalamu alaikum. Today we have 28th lecture for Business Finance MGT 232. We were studying about capital markets in our last chapter and in our last lecture, and we'll be moving on to a few more topics of capital market in our today's lecture. Let's have a brief overview of our last lecture. That was about the introduction of the capital markets. We did study about the capital markets and the primary and the secondary market in our first chapter. We will be focusing on the details of these capital markets. The first thing we studied about was what is a capital market. The capital market is a place, or we can say the financial market first of all. The financial market is basically the place which which creates a financial environment and allows your buyers and sellers to come together in a market where your buyers who need funds and your sellers who are the providers of the funds, and they come in contact within a market that is called your financial market. Now when we talk about the capital market, your capital market is the market for the transaction of long-term securities, which are basically your bonds and stocks and few or more long-term securities. Then we have within capital markets we have primary and secondary market. Primary market is a market which is the market for new shares or the issue of the new shares. Whenever we issue our new shares to the general public, it is a primary market transaction. Now for the issuing the shares for the very first time to the general public is your primary market transaction, or we can say it's an initial public offering, and issuing the new securities to the general public, for example, for the very next time, second time, third time, so it would be a second public offering or the third public offering. That means के एक दफ़ा मेरे already shares issue हुए हैं और मैं दोबारा वही company दोबारा से new shares issue करना चाह रही है. So that is your second public offering. Then we talked about the secondary market. Your secondary market transaction is a transaction in which your already outstanding shares or the existing shares are being traded between different investors, between sellers and buyers, where company is not involved. This is your secondary market. Now our focus is basically on the capital market and the primary market specifically whenever we are dealing with the issue of the specific issue of your general issue of your securities to the general public. Now it was discussed that what is a public issue and what is a private placement. Well, public issue is a general issue or the issuing of the securities to your general market, to your general public. So whenever we are issuing our securities to the general public, it is a public issue. And and most of the time your underwriters, your investment bankers are involved in helping issuing your securities to the general public. Then we talked about this private placement, where private placement is basically the transaction between simply two different parties, or we can say the company issuing the securities to your simple investor or the group of investors. In public issue there is a huge amount of investors, hundreds and thousands of investors are included, and we have to follow a formal contract which is being issued or which is being oversighted by your state or in the federal government. But in case of your private placement, in case of your private placement, there is no legal requirements, or your number of investors are very less. There might be only one investor, your one firm or a group of firms which are helping to issue your securities. Then we talked about the investment banker. Whenever we are talking about the issuing of the securities to the general public, your public issue, we are basically also considering the investment banker. Now the role of investment banker is different. It helps in distributing the securities or the public issue, and it helps in advising the firms that whether how to advertise your security, what should be the price of the security, at what time your securities should be issued. These are the free advices that are being given to your companies, and that is how the cost is lowered, and this is an advantage to the company. Beside this, your shareholders, your investment bankers also help in creating your shareholders by advertising your issue. They distribute your issue, they advise the company, they also advertise the issue, and they at the end also distribute and
underwrite the issue. Now, what is the basic role is basically underwriting the issue of the investment banker. The role of the investment banker is to underwrite the issue. Now, underwriting means that you are going into some kind of a contract that you are, or a promise that you are going to purchase the securities at a fixed price and a fixed time, and going to sell out those securities at a certain higher price to the general public. Or there can also be a commission involved that is being paid from your company, which is being underwritten. Now, and there can be a syndicate of investors, where syndicate of investment banking houses, which we called as the group of investment banking houses, or the syndicate of underwriters. We called it as syndicate underwriting. Now, syndicate underwriting में क्या होता है कि for example जब हमने Twitter की example ली थी, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक investment banker नहीं था, large amount of investment bankers होते हैं. वो जो large amount of investment bankers होते हैं, जो कि एक group form करते हैं to help sell the securities of the company, and most of the time it is done when there is a large organization or there is a large number of issue to be sold out to the general public. अब ये जो आपके syndicate underwriting होती है, फॉर्म ही आपके different groups of investment banker के थ्रू होती है. Now when we talk about investment bankers, basically वो आपके underwriters होते हैं, जो underwrite कर रहे होते हैं कि अगर आपकी सिक्योरिटी 10 रुपए में हम खरीदेंगे और 11 रुपए में बेच देंगे, अगर आपकी सिक्योरिटीज ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है, इश्यूड कैपिटल हम डिसाइडेड है कि दिस इज द इश्यूड कैपिटल, अगर वो प्रॉपर तरीके से इश्यूड नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लिया जाएगा कि इतनी अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो हम अंडरराइट करते हैं कि हम वी आर गोइंग टू सेल दीज सिक्योरिटीज एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर टू द जनरल पब्लिक. इससे हमारी क्या होती है कि ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है. और सिंडिकेट के में जो केस होता है उसमें ये होता है कि आपकी बिड लगाई जाती है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव सिंडिकेट्स के बीच में, और जो लोएस्ट बिड या हाईएस्ट बिड जो भी केस होता है जिसमें ये कंपनी डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट इज बीइंग सेलेक्टेड, इस केस में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवली आपकी बिड्स जो है वो लो हो जाती हैं. Now then we discussed about the privileged subscription, जिसके अंदर privileged subscription ये है कि जब भी कंपनी अपने एक दफ़ा शेयर्स इशू कर चुकी है and they have a large number of shareholders, और कंपनी दोबारा से डिसाइड करती है to issue new securities, तो वो जब दोबारा से डिसाइड करेगी कि new securities इशू करनी है तो that is your privileged subscription. That is the you are allowing your existing shareholders to purchase new form of shares, या आप कह सकते हो कि you are asking your existing shareholders to purchase your new issue of securities and in a similar proportion in which they already have the ownership in the company. For example, एक अगर कोर के पास 10% 20% ownership है in the company shareholder की, और वही shareholder दोबारा कुछ new shares जब issue किए जा रहे हैं उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो अगर 10% है तो 10% ही न्यू शेयर की सिक्योरिटीज खरीदेगा, 20% है तो 20% ही अपनी न्यू शेयर्स के 20% जो है वो उसको अलाउ होगा आपके shareholder to buy those securities. This is called your privileged subscription, or sometimes called as right offering. Then we have a preemptive right. Preemptive right हमने पहले पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर ये right दिया जाता है shareholders को, क्योंकि privileged subscription के अंदर हमारे पास 2 different किस्म के rights आते हैं. The first one is your preemptive right and second one is your subscription right. तो जब हम preemptive right की बात करते हैं तो preemptive right में आपके वो right है to the shareholders कि they can purchase new securities in a similar proportion as is their ownership. That means 10% of the ownership है तो 10% ही अपने new securities में से ये shares को खरीदेंगे. इसके अलावा जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो ये है कि आपकी जो ऐसे शेयर्स भी, या अगर कंपनी इशू कर रही है कोई ऐसी सिक्योरिटीज जो कि विच आर इजीली कन्वर्टेबल एट लेटर टाइम्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, वो बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो, जैसे कि हमने बॉन्ड्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं दैट आर लेटर ऑन कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. तो ऐसे शेयर्स भी प्रीएम्प्टिव राइट में आ जाते हैं कि ऐसी सिक्योरिटीज भी खरीदी जा सकती हैं एंड दे हैव द राइट, shareholders have the right to purchase those securities, and this is called your preemptive right. Then we have the subscription right. The subscription right basically is your right to subscribe to your new issue. आप new issue पे एक certain specific price के ऊपर subscribe कर लेते हो. Now, value of the rights. Next is your last point we discussed in our last lecture is value of the rights. Your value of the right is the right of purchasing the securities at a discount rate, क्योंकि आपके shareholders को allow होता है कि जो current market price है उससे 10 to 20% less price के ऊपर आपके share को issue किया जाए, purchase किया जाए. And your shareholders has this right, the value right जिसको हम कहते हैं value of rights या rights value. इसका हम इसलिए कहते हैं कि this rights value or the value of the right
is the allowance of purchasing the securities at a discount rate that is mostly from 10 to 20% less than the current market price. तो current market price से कम price के ऊपर your shareholders are allowed to purchase new securities. Well, that was about your value of the securities. जिसमें हमने last एक formula भी solve out किया है. Then we'll be moving on to our next topic that is related to your value of right. जिसके अंदर वी हैव थ्योरेटिकल वर्सेस एक्चुअल वैल्यू ऑफ राइट ना. एक तो तरीका ये कि मैं वैल्यू ऑफ राइट्स कुछ निकाल लेती हूँ कि जी इतनी परसेंट मुझे लगता है कि इतना परसेंटेज डिस्काउंट मिलना चाहिए फ्रॉम द करंट प्राइस. नाउ थ्योरेटिकल ये हो गया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा जब मैं जाऊंगी नहीं मार्केट में और यहाँ जब तक कंपनी अलाउ नहीं करेगी टू द शेयर होल्डर्स की इस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आपका शेयर जो है वो खरीदा जाए. नाउ व्हाई माइट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ राइट डिफर फ्रॉम इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू कि आपने थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जब आप एक्चुअल में खरीदने लगे हो तो उसकी डिस्काउंट प्राइस थोड़ी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड. नाउ क्यों किस किस रीजन से होता है उसका फर्स्ट रीजन इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट. डेफिनेटली योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज इन्वॉल्व, द टाइम इज इंक्लूडेड, देन देयर इज अ स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन अगर की गई है तो आपकी करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी. नाउ यू हैव सेड दैट 10 to 20%, तो आपने थ्योरेटिकली पहली प्राइस पे किया हुआ था, आप अगले दिन खरीदने गए हो तो करंट मार्केट प्राइस हो सकता है वो डिमांड की वजह से इंक्रीज हो गई हो या डिक्रीज हो गई हो और उसका 10 to 20% जो है वो कम निकल रहा है एज यू एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकली फाइंड आउट. Then irregular exercise and sale of rights over the subscription period. जब subscription period था उसमें irregular security और we can say legal right था जो कि आपने securities company ने sale out कर दी. Now arbitrage acts to limit the deviation of the actual right value from the theoretical value. जो हमने अगर आपको याद हो तो हमने arbitrage की बात की थी जिसके अंदर हम लोग अपने shares जो है हमने अपनी dividend policy में I think dividend policy और it was before that जिसके अंदर हमने ये चीज डिफाइन की थी कि arbitrage क्या होता है. तो arbitrage acts to limit the deviation of the actual right value from the theoretical value. उसको वो deviate होने से help out करता है कि right value और actual right value और your theoretical value बिल्कुल एक similar हो. Now let's move on to the next topic, that is your standby arrangement. Now standby arrangement is a measure taken to ensure the complete success of a rights offering in which an investment banker or a group of investment bankers agrees to stand by to underwrite an unsubscribed portion of the issue. जिसके अंदर देखिए जैसे हम stand by कह रहे हैं वो नाम से ही पता चल रहा है कि वी अलाउ आर अंडर राइटर्स, जिसके अंदर आपके जो अंडर राइटर्स होते हैं क्योंकि हमने राइट्स ऑफरिंग जो कि उनकी सब्सक्रिप्शन राइट था या प्रीएम्प्टिव राइट था उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए दैट मींस यू आर गोइंग टू इशू योर सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, न्यू सिक्योरिटीज इशू की है जनरल पब्लिक को, लेकिन वो न्यू सिक्योरिटीज जो है वो सेल आउट प्रॉपर नहीं हुई है. दैट मीन्स कि आपने अगर 100,000 शेयर्स इशू किए जनरल पब्लिक को तो उसमें से सिर्फ 80,000 शेयर्स हुए. सो इन दैट केस व्हाट वुड बी द ऑप्शन कि आपके स्टैंड बाय अंडर बजाय इसके कि पहले से आप अंडर राइटर्स को कहने के आप स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर देते हो. अगर आपको याद हो तो हमने जो एक कंप्लीट पढ़ा था, एक फिगर पढ़ी थी जो बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में, जिसके अंदर हमने एक लाइन डिफाइन की थी कि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन इज अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट. कि अगर स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो तो प्राइवेट इशू या पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट इनमें से कौन सी में किस तरह से स्टैंड बाय हेल्प करता है. पब्लिक इशू में ही डेफिनेटली इट्स अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट वेयर योर अंडरराइटर्स आर इन्वॉल्व्ड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अंडरराइटर्स इट इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली agrees that they are going to stand by to underwrite any unsubscribed portion of the issue. That means कि मैंने इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये है कि इशूड कैपिटल में से हमने 3-4 चीजें थी जो बिल्कुल स्टार्ट में भी मैंने आपको डिफाइन की थी. दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल. Now authorized capital वो amount of capital है that company is authorized to issue. कि कंपनी का ऑथराइज है कि फॉर एग्जांपल जब से अभी हम आगे कुछ रूल्स भी पढ़ते हैं जिसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन एंड डिस्क्राइब की हुई है कि आपके लेट्स सपोज यू हैव जो भी अभी कंपनी की वर्थ है और आपकी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होती है वो ये चीज डिफाइन करती है कि जी अकॉर्डिंग टू दैट या इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल इनको चाहिए तो उसके लिए इनको इतना पर शेयर की प्राइस अगर इतनी रखें तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स ये इशू कर सकते हैं. नाउ लेट्स सपोज द कंपनी इज अलाउड टू इशू 1 million shares. Out of this this is your authorized capital. Out of this authorized capital कंपनी जो है वो क्या करती है अपना issued capital चेंज डिसाइड करती है एंड दैट इज 500,000. दैट इज हाफ ऑफ दैट ऑथराइज्ड कैपिटल.
500,000 कंपनी ने डिसाइड किया इज गोइंग टू इशू। नाउ जब कंपनी पब्लिक इशू करती है फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को अपना कुछ एक सर्टेन शेयर्स जो हैं वो इशू करते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन होती है जिसको हम ये कहते हैं कि दैट इज सब्सक्रिप्शन इशू या सब्सक्राइब्ड इशू। तो सब्सक्राइब्ड इशू वो है जो कि मैंने जनरल पब्लिक को 500,000 शेयर्स इशू किए जिसमें से सिर्फ 400,000 शेयर्स हुए। तो वो जो 400,000 शेयर्स इशू हुए हैं दैट इज योर सब्सक्राइब्ड इशू। इस सब्सक्राइब्ड इशू में से जो आपके इशूड कैपिटल में से अमाउंट बच गई है that is 100,000. This 100,000 is your unsold portion of the issue. Unsold portion or your unsubscribed. It is unsold portion or unsubscribed portion of the issue. अब यही बात है कि ऑथराइज्ड कैपिटल उसमें से इशूड कैपिटल, अब उसमें से इशूड कैपिटल में जितना तो डायरेक्ट इशू हो गया दैट इज योर सब्सक्राइब्ड इशू, और जो चीज नहीं होती दैट इज अनसब्सक्राइब्ड, वो बेसिकली हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उस चीज को सोल आउट करने में आपकी हेल्प करते हैं कि दे आर गोइंग टू सेल आउट दोज सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। अब वही बात है कि अंडरराइटर्स आर गोइंग टू एग्री दैट दे इस सर्टेन प्राइस के ऊपर वो खरीदेंगे और मार्केट में इस सर्टेन प्राइस के ऊपर विद इन स्पेसिफिक डेट या एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर वो उसको बेच देंगे। अब अगर नाउ लेट्स सपोज सम टाइम टू अंडरराइटर्स कमीशन अगर नहीं मांगते तो दे आर एक्चुअली बेसिकली अर्निंग फ्रॉम द अंडरराइटिंग स्प्रेड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो अंडरराइटर्स होते हैं इन स्पेसिफिकली इन अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू आस्क फॉर अ कमीशन और अ फी। तो वो फी बेसिकली किस फॉर्म में होती है, द फी इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीस। The first one is your flat fee and additional fee for each unsold share of stock. Now flat fee is basically that transaction cost and all that fee they are going to earn a profit on the जो भी उनकी cost incurred होगी उन सबकी basic prices. Now when we talk about additional fee, that is an additional cost that is being incurred by your अंडरराइटर्स, तो वो उसकी कोई फी चार्ज कर सकते हैं। देन द ग्रेटर द रिस्क ऑफ अनसक्सेसफुल राइट्स ऑफरिंग द मोर डिजायरेबल अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट इज डेफिनेटली। जितना ज्यादा कंपनी को पता होगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ अनसक्सेसफुल राइट्स ऑफरिंग के मैंने जो राइट ऑफरिंग करनी है टू द जनरल पब्लिक उनमें से चांसेस हैं कि क्योंकि टाइमिंग्स भी होते हैं आपके इशू करने के, जैसे कि हम ट्विटर के बारे में बात की जाती है कि ट्विटर की अभी नवंबर में इशू हुआ है, नवंबर 2013 में जब उसके शेयर्स इशू हुए तो वो आपके क्या है, दे आर द शेयर्स विच आर उसने पब्लिक ऑफरिंग की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की है ना। वो पब्लिक ऑफरिंग उस ऐसे टाइम में नवंबर का वो टाइम बेसिकली होता है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आपके शेयर जो हैं वो बेहतर तरीके से बिक सकते हैं, उनको ट्रेडिंग टाइम कहते हैं ना। ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसके अंदर आपकी ट्रेडिंग टाइम नहीं होती, यहाँ कहा यह जाता है कि उस टाइमिंग्स में अगर आप शेयर्स इशू करोगे तो अगर आपके ऐसी कोई इश्यूज हैं जिसके अंदर आपकी सिक्योरिटीज जो हैं वो बेसिकली आपने जो इशू किए हैं वो अंडर सब्सक्राइब है, दैट मीन्स कि वो दे आर नॉट बीइंग दे आर अनसोल्ड, दे आर नॉट बीइंग सोल्ड टू योर जनरल पब्लिक। तो ऐसा कोई भी जब भी ऐसा कोई केस आता है तो उन केसेस में वो टाइमिंग्स ऐसा हो सकता है, वो टाइमिंग्स ही ऐसे, जैसे कि ट्विटर की अगर हम कह रहे हैं नवंबर तो वो वाला टाइमिंग हो सकता है नवंबर अच्छा टाइमिंग है, लेकिन हो सकता है वो वाला टाइम कोई अच्छा ना हो। तो ऐसे केस में जहाँ पे हमें रिस्क होता है, हम देयर आर चांसेस कि आपकी जो राइट्स ऑफरिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी या यू कैन से कि उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप क्या करते हो, वहां पे आप अंडर राइटर्स लेकर आते हो और वहां पे स्टैंड बाय अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ योर पब्लिक इशू गो फॉर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जिसके अंदर वो ज्यादा कोशिश उनकी ये होती है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर जाए ताकि इन केस ऑफ अनसोल्ड सब्सक्रिप्शन आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाए फॉर स्पेसिफिक अमाउंट। नाउ देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेज। अगर आपको याद हो तो मैंने अब स्टार्ट में शायद ये चीज बताई हो कि इशूड कैपिटल के बाद वी हैव अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मींस के जितने भी शेयर्स में 500,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी उसमें से मेरे कम शेयर्स इशू हुए हैं, दैट मींस मेरे 400,000 शेयर्स हुए, 100,000 शेयर्स इशू नहीं हुए, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड नाउ आई नीड एन अंडरराइटर टू सेल आउट दोज सिक्योरिटीज, रिमेनिंग सिक्योरिटीज। Now let's suppose आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, दैट मीन्स मोर ऑफ द शेयर होल्डर्स या आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनको ज्यादा सिक्योरिटीज चाहिए, दे नाउ डिसाइडेड टू गेट मोर सिक्योरिटीज।
ना उस केस में हम इसको ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेज कहते हैं ना। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेज द राइट टू परचेज ऑन अ प्रो रेटा बेसिस एनी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स इन अ राइट्स ऑफरिंग। अगर राइट्स ऑफरिंग है उसके अंदर अनसब्सक्राइब्ड जो है वो शेयर्स रह गए हैं तो ये राइट कि प्रो रेटा बेसिस दैट मीन्स कि जो भी उसके बेसिक किसी स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर कि वो शेयर होल्डर है एंड इट हैज द राइट, तो वो एक राइट होता है कि आप परचेज कर लो वो सिक्योरिटीज जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव द राइट कि वो ऐसे अनसब्सक्राइब जितने शेयर्स होते हैं उनको खरीद लें। Now, for example, the shareholders subscribe for 450,000 shares of a 500,000 shares rights offering. 500,000 शेयर्स इशू करने थे जिसमें से सिर्फ 4,500 शेयर्स इशू हुए हैं। They have subscribed for 4,500 share new shareholders. Now let us assume that some of the shareholders would like more shares and oversubscribed by 80,000 shares. अब कहा यह जाता है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो ये उन्होंने इस तरह से इंटरेस्ट शो किया है कि दे वांट टू गेट मोर शेयर्स, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं और शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब देखिए वैसे तो हमने कितने शेयर्स इशू करने थे, इशूड कैपिटल हमारा 500,000 था, उनमें से सिर्फ 450,000 शेयर्स इशू हुए, दैट मीन्स 50,000 शेयर्स जो है वो अभी भी रहते हैं। लेकिन आपके जो नए शेयर होल्डर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि 50,000 नहीं 50,000 से भी ज्यादा के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, दैट मीन्स वो दे वांट 80,000 शेयर्स। तो 80,000 के जो शेयर्स हैं एज अ रिजल्ट ईच शेयर होल्डर ओवर सब्सक्राइबिंग रिसीव्स 5/8 ऑफ अ शेयर फॉर ईच शेयर ओवर सब्सक्राइब। वो क्या करेंगे कि 50,000 डिवाइडेड बाय 80,000 जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसको डिफाइन इस तरह कर देंगे कि 5/8 ऑफ अ शेयर ऑफ ईच शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड। नाउ कुछ चीजें डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन द अंडर रिटन इशू एंड प्रिविलेज्ड सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर हम ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। Now investors are familiar with the firm's operation when using a rights offering. जब भी वो rights offering use कर रहे होंगे, they want to purchase the shares of the company, तो definitely they are familiar with the firm's operations और किस तरह से जा रहा है, उसकी profitability क्या है। The principal sales tool is a discounted price. इसके अंदर basically हम लोग क्या चीजें use करते हैं, rights offering में हम discounted price को देख रहे होते हैं क्योंकि value of a right जिसमें हम डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं, एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग में बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंक्लूडेड होते हैं। अ डिसएडवांटेज ऑफ अ राइट्स ऑफरिंग इज दैट द शेयर्स विल बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, दैट्स डेफिनेट, क्योंकि करंट प्राइस से कम प्राइस के ऊपर वो मिल रहे होते हैं, ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है। देयर इज ग्रेटर डायलूशन और यू कैन से द इंटेंसिटी और द स्ट्रेंथ विद द राइट्स ऑफरिंग व्हिच मेनी फर्म्स ट्राई टू अवॉइड। तो बहुत सी डायल्यूशन होती है जिसके अंदर इंटेंसिटी होती है इसमें इन्वॉल्व, जो कि काफी ज्यादा फर्म जो है उसको अवॉइड करती हैं। देयर इज अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स विद पब्लिक ऑफरिंग, जब भी आप पब्लिक ऑफरिंग करोगे उससे ज्यादा शेयर्स सेल आउट हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ योर rights offering. Now let's look at some of the regulations which we can consider, or there are things which are considered, the legal rules which are being followed by the companies in order to subscribe or in order to register themselves or in order to offer to the general public their issues. Now regulation of security offerings means the first thing is your federal government कैसे included होती है। Now there is a Security Act of 1933 जो कि Security and Exchange Commission में आपकी किसी भी कंट्री की हो सकती है, और इन केस ऑफ पाकिस्तान Security and Exchange Commission of Pakistan वो different rights को follow जरूर करती है, but they do have their own Securities Act. For example, in case of Pakistan it's Ordinance 1987. Yeah, it's 1887. The Ordinance Act of 1887 और समथिंग, जो कि आपकी हेल्प आउट करती है कि कंपनीज के जो भी रूल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी पब्लिक ऑफरिंग, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन डिफाइंड इन दैट ऑर्डिनेंस ऑफ 1887 और 1883. Now let's look at the International Securities Act of 1933 जो कि USA में ज़्यादा यूज किया जाता है, ये यूरोपियन कंट्री में. It is generally requires that public offering be registered with the federal government before they may be sold, also known as Truth in Securities Act. Truth in Securities Act क्या है कि पहले वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होंगे, ऑफरिंग भी रजिस्टर्ड विद द फेडरल गवर्नमेंट, एंड देन आफ्टर दैट द कंपनी इज अलाउड टू ऑफर इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. नाउ देयर इज अनदर सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934 है, दैट रेगुलेट्स द सेकेंडरी मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटी एक्सचेंजेस एंड ओवर द काउंटर मार्केट. सो ये एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ऑल योर सिक्योरिटी मार्केट और योर ओवर द काउंटर मार्केट, योर सेकेंडरी मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ऑल रेगुलेटेड बाय योर सिक्योरिटी
एंड एक्सचेंज कमीशन, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बेसिक हेड होता है दैट रेगुलेट योर सेकेंडरी ऑल सेकेंडरी मार्केट्स. नाउ लेट्स लुक एट रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफरिंग्स फॉर फ्यू मोर थिंग्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट थिंग इज योर रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट. जब भी कोई भी कंपनी रजिस्टर की जाती है उसके अंदर उसकी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर होना, फिर आपकी पब्लिक ऑफरिंग होना, फिर उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ में. वो आपका एक अलग सा कोर्स है, लेकिन इसकी कुछ ब्रीफ ओवरव्यू जो है रिलेटेड टू योर पब्लिक ऑफरिंग वो मैं दे देती हूँ आपको. इसमें हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन है. जैसे कि हमने पहले बात की कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के थ्रू आपके सारे लॉज जो हैं वो इन्फोर्स होते हैं. फर्स्ट थिंग दैट कम्स व्हेनेवर कंपनी जो है वो डिसाइड करिए तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी मीटिंग. दैट स्टैट्यूटरी मीटिंग इज बेसिकली ऑफ द पीपल हु आर द प्रीलिमिनरी और द पीपल हु आर बेसिकली start the company, जिनका आइडिया होता है, people with the preliminary idea of the company, तो they are the people who basically deal with all these public offering and the thing, and later you have the shareholders. In case of Twitter we can say the owner or the CEO जो भी उसका company का basic owner है, he is doing all those things, and specifically or that 4 investors, 4 basic shareholders जितने भी हैं, they are dealing with this public offering. Now जब भी आपकी कंपनी को रजिस्टर करना होता है तो कुछ चीजें होती हैं जिनको बहुत ज्यादा देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम आपको ये होता है कि आपने कुछ चीजें एक अपनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास भिजवानी होती हैं. उनको ये भिजवा के डिसाइड करना होता है कि जी ये दीज आर द थिंग्स जो कि हम चाहते हैं कि कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम जी चाहते हैं इस टाइम में. और वो काफी टाइम पहले 2 महीने आई थिंक पहले या 20 डेज पहले जो है वो एक्चुअल में दिया जाता है कि 20 डेज टाइम पीरियड होता है फॉर द अप्रूवल. वो दिया जाता है कि इस टाइम में हम लोग शेयर्स इशू करना चाहते हैं, फॉर्मली दिया जाता है. तो फॉर्मली जब वो एक आपकी सब्सक्रिप्शन दी जाती है उसमें फिर कोई अमेंडमेंट्स होते हैं या चेंज होते तो आपको वापस भिजवा दिया जाता है कि मेक सच अमेंडमेंट्स, और आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है कि आपको कहा जाता है कि एक सर्टेन रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट बनाई जाए. Now let's look at the thing. What is a registration statement? The disclosure of document filed with the SEC in order to register a new securities issue. जब भी आपने कंपनी ने न्यू सिक्योरिटी इशू करना है या अगर न्यू कंपनी है तो the new company first have to register and then they have to register the new securities issue to the Security and Exchange Commission. In case of Pakistan, it is Security and Exchange Commission of Pakistan. So Security and Exchange Commission of Pakistan के पास जो है वो रजिस्टर किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे पड़ेंगे for filing. Now there are 2 different parts of these registration statement. या उसकी फाइल के अंदर 2 चीजें होती हैं. The first one is your prospectus and another is your additional information. Now prospectus is basically available to all your shareholders, yeah, all your investors who are interested in investing in the company, and your second part, your additional information is then retained with the SEC. It is also given as a additional information. Now when we talk about the prospectus, what is the prospectus? It is a disclosure, it discloses the information about the issuing company and its new offering and distributed to the investors. ठीक है, उसकी basic info. अब इसमें information क्या क्या involved होती है? The first information is the name of the company, the dividend it is going to give, the issued capital, कितना shares issue करने, the number of shares, कंपनी का address, कंपनी का legal name और फुल लीगल नेम, फिर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल, डिविडेंड पॉलिसी की डिटेल्स, कुछ ऐसी सर्टन और डिटेल्स होती है और इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज बीइंग डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस. नाउ अगर प्रोस्पेक्टस या रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ होती है तो वो अमेंडमेंट के लिए एज अ कवर लेटर यस इट्स रिटर्न एज अ कवर और द यू कैन से द कन्वेइंग लेटर होता है जो कि इन रिस्पॉन्स दिया जाता है कि आप इसमें कुछ सर्टन चेंजेस कर लिए जाए, कुछ अमेंडमेंट्स कर लीजिए. उसके बाद अमेंडमेंट करने के बाद कंपनी दोबारा भेजती है फॉर रजिस्टरिंग इटसेल्फ एंड इट्स न्यू सिक्योरिटीज. नाउ पार्ट 2 इज अबाउट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द SEC दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रिंटेड प्रोस्पेक्टस. वो प्रिंटेड प्रोस्पेक्टस का पार्ट नहीं होता, बट कुछ अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट एंड अदर स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर जो कि अगर आपके शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स चाहें तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू योर जनरल पब्लिक, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रिंटेड प्रोस्पेक्टस. जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है. The next thing we have is red herring. Well, red herring is the preliminary prospectus की कंपनी को अलाउ होता है कि अगर उसका प्रोस्पेक्टस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है और इन केस के अगर कंपनी का कुछ कोई डेफिशिएंसी रह गई थी तो इन दैट केस कंपनी जो है प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है विद रेड हेरिंग.
इसको रेड हेरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेड इंक में लिखा जाता है. नाउ लेट्स लुक एट द थिंग what is red herring. The preliminary prospectus, it includes a legend in red ink on the cover stating that the registration statement has not yet become effective. वो अभी तक registration statement complete नहीं हुई या effective नहीं हुई, उससे पहले एक simple सी preliminary prospectus भेज दी जाती है for your shareholders or investors. Now SEC reviews the registration statement to see all the required information is being presented and that is not misleading. के सारी की सारी accurate information disclose हो रही है, क्योंकि SEC का basically काम ही यहाँ पे Security and Exchange Commission का ये होता है कि वो ensure करे कि all the information is accurate and कोई केस ऑफ फ्रॉड या कोई और अदर केस नहीं है. नाउ जब रिव्यू करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में इफ दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसीज और डेफिशिएंसीज दे रिटर्न बैक दैट registration statement to the company which is communicated in a comment letter. इस comment letter जिसके अंदर comment दिया जाता है कि these are the discrepancies and deficiencies. उसके बाद कंपनी क्या करती है कि दोबारा से उसमें changes and amendment करके तो amended registration statement जो है वो भेज देती है to your SEC. और वो टाइम पीरियड जिसके अंदर वो कंपनी को वापस कमेंट लेटर जाता है वो दोबारा से अमेंडमेंट्स करेगी, उतने टाइम पीरियड के लिए वो रेड हेरिंग इशू कर देती है. दैट इज अ प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस. नाउ दीज डेफिशिएंसी जो है अमेंडमेंट्स के साथ वापस भेजी जाती है. उसके बाद SEC जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो वापस अपनी फाइल भिजवा सकता है. नाउ वंस योर SEC is satisfied, it approves the registration. Now whenever it approves the registration की सब all the information is completely described in the registration of statement and सब चीजें इसमें हैं, तो then it will approve the registration. Now if not, it issue is a stop order. Now इसके बाद अगर let's suppose उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है दोबारा से रजिस्ट्रेशन, वैसे तो नॉर्मली होता ही है कि जितना भी चेंज इन द रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट कहा जाए आपके SEC जो है उसको कमेंट लेटर के साथ कमेंट लेटर 1 2 3 जितना भी उतनी दफा वो भेज देती है कंपनी, उसमें अमेंडमेंट्स चेंजेस करके दोबारा भेज देती है. नाउ लेट्स सपोज अगर कोई इन केस ऑफ के वहाँ पे कोई फ्रॉड है या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि SEC का बेसिक काम ही ये होता है टू इंश्योर कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर जा रही है वो प्रॉपर है और वो सही राइट इन्फॉर्मेशन है. तो लेट्स सपोज अगर इधर इन केस ऑफ एनी फ्रॉड और समथिंग एल्स इज बीइंग found out in the registration statement of the company, in that case a stop order is issued in the name of the company from the Security and Exchange Commission. Now let's look at a few more registration statement effective date देख लेते हैं. Registration statement become effective on the 20th date after filing. For example, आज अगर मैंने फाइल की है, अपनी फाइल करती हूँ let's suppose 1 जनवरी को फाइल हुई है आपकी कंपनी, तो 1 जनवरी को अगर कंपनी ने फाइल किया विद SEC तो वो उसके 20th डे पे, दैट मीन्स उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन में चेंजेस आने, कोई कमेंट्स होने, कोई रेड हेरिंग होनी है, वो ब्ला ब्ला, ये सब चीजें 20 डेज के अंदर अंदर होता है. 20th डे पे 1 जनवरी को अगर किया तो दैट मीन्स 20th जनवरी को जाके उसकी रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी. दैट मीन्स दैट विल बी अवेलेबल टू योर जनरल पब्लिक. और ऑन द 20th डे आफ्टर फाइलिंग द लास्ट अमेंडमेंट, या तो ये हो सकता है कि जिस दिन मैंने फाइल की थी उसके बाद के 20th डे अगर देयर इज नो चेंज एंड इफ इन केस देयर इज अ कमेंट लेटर या कोई चेंजेस आ रहे हैं तो जो भी लास्ट अमेंडमेंट की होगी, फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस के लिए कंपनी को वापस भेजा गया, उसके बाद कंपनी ने 5 जनवरी को दोबारा कंपनी ने फाइल किया और कहा जी हम विद अमेंडमेंट है हमारी रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट. अब 5th से लेके आगे 20 डेज, दैट मीन्स 25th जनवरी को इसकी बनेगी your registration statement effective date. Now SEC at its discretion can advance the date. वो डेट को पहले भी कर सकता है एंड उसको थोड़ा आगे भी कर सकता है. Typical time from filing to approval is 40 days. वो हो सकता है उस डेट को थोड़ा आगे कर दे, that is 40 days तक ले जाए उसको, depending upon the approval and the requirements of SEC. Now क्योंकि हम शेल्फ रजिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हम इन एडवांस थोड़ा सा शेयर इशू को, पब्लिक इशू को देख लेते हैं. नाउ देखते हैं कि शेल्फ रजिस्ट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है. शेल्फ रजिस्ट्रेशन जो कि हमने पहले से करनी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरह से उसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं. अ शेल्फ रजिस्ट्रेशन अलाउज अ कंपनी टू रजिस्टर विद SEC इन एडवांस ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफरिंग. मैंने अगर 1 महीने बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को करना है तो मैं 1 जनवरी में कोई इन एडवांस ही मैं अपनी कंपनी को फाइल या रजिस्टर करवा लेती हूँ कि जी 20th डे से वो इफेक्टिव होगी, 20th जनवरी से इफेक्टिव होगी, लेकिन मैं अपनी 1 फरवरी से पब्लिक ऑफरिंग शुरू करूंगी.
रजिस्टर इन एडवांस करा ली जाए तो उसको हम शेल्फ रजिस्ट्रेशन कहते हैं. नाउ द कंपनी कैन सेल ऑफ द शेल्फ बाय फाइलिंग अ सिंपल अमेंडमेंट एंड हैविंग द SEC एक्सेलरेट द नॉर्मल 20-day वेटिंग पीरियड अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स. जो भी अमेंडमेंट होगी कंपनी ने फाइल किया, उसमें अमेंडमेंट्स की और फटाफट दे दिया. उसके बाद 20 डेज का वेट करने के बाद 20th 30th डे पे 20th तो 21st डे पे जाके उसने अपने जनरल पब्लिक को विद अमेंडमेंट्स के बाद वाली सारा जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिया. That is off the shelf registration. Now typically the waiting period of following this simple amendment is only a 2 day or 2, क्योंकि जो भी amendment की कहा गई है उसकी amendment 2-3 दिन में हो गई है. तो वो जो 2-3 दिन होंगे उसके बाद कंपनी जो है वो 20 days का वेट करने के बजाय that will move on to approval अगर आ जाए तो that will move on to your next step of issuing the securities. Now there are a few more things which are considered in the regulation of the security offerings. That is your tombstone advertisement. An announcement placed. अब companies जितनी भी हैं उनके लिए requirement है in case of पाकिस्तान. यहाँ पे requirement ये है कि आपकी 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर और 1 उर्दू, 2 इंग्लिश और 1 उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए डिस्क्राइबिंग द पब्लिक ऑफरिंग टू द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को आप जो भी ऑफरिंग करोगे वो आपकी एडवर्टाइजमेंट नई न्यूज़पेपर में आनी चाहिए. Now इसको हम tombstone advertisement कहते हैं. An announcement placed in newspaper and magazines giving just the most basic details of a security offering. उसकी basic information होती है जिसके अंदर it includes the company's name, a brief description of the security, the offering price and the names of the investment bankers in the underwriting syndicate. ये सब चीजें आपकी जो है वो clearly described की होती हैं आपकी properly आपके tombstone advertisement के अंदर. Now the term reflects the stark black-boarded look of the ad. कि आप की ad जो है वो बहुत इस तरह की होनी चाहिए जिसमें specific information होनी चाहिए लेकिन बहुत attractive भी होनी चाहिए in order to attract your investors. Now there is another law that is called your blue sky laws. That is the state laws regulating the offering and सेल ऑफ सिक्योरिटी. इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो हम रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कर रहे थे. तो अगर हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो दैट इज योर इंडिविजुअल स्टेट्स हैव सिक्योरिटी कमीशन दैट रेगुलेट देयर सिक्योरिटीज इन देयर स्टेट्स. कि जितनी भी आपकी इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, इन केस नॉट इन केस ऑफ पाकिस्तान तो ऐसा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो देयर आर प्रोविंसेस. फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान प्रोविंस या योर खैबर पख्तूनख्वा एंड योर पंजाब प्रोविंस ये अपनी अपनी एक स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना ले तो उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी हो जाएगा. नाउ दीज लॉज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन अ सिक्योरिटी इशू इज सोल्ड एंटायरली टू द पीपल विद इन द स्टेट एंड मे नॉट बी सब्जेक्ट टू SEC रेगुलेशन. और एक तो SEC रेगुलेशन में नहीं आएगा और वो तभी उसके लॉज जो है वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन स्टेट है, एक सर्टेन प्रोविंस है, सिर्फ इसके अंदर ही आप यहाँ के रहने वाले लोग ही आपकी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं. इसके अलावा जितना भी होगा वो आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो एक तो वो उसको हेल्प आउट नहीं करती कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द SEC रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती. एंड बिसाइड दैट आपकी पब्लिक जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस के हिसाब. Now there is an important if the SEC provides only limited review. Now अगर SEC सिर्फ limited review provide करे तो in that case your state government or your state is going to issue some securities. Now states vary on the strictness of the regulation. That depends कि आपकी strictness of the regulations क्या है तो accordingly आपकी कंपनी blue sky law जो है वो follow करे. Now we have regulation of security offerings within a state or you can say on a federal government basis as well. In 2002, when there was George W. Bush was the president of USA. उस टाइमिंग्स में 2002 के बाद कुछ आपके इस तरह के क्राइसिस लेटर ऑन आए थे. तो जब बुश था तब ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिनके अंदर सबसे बड़ा केस आपका वर्ल्डकॉम और उसके बाद एनरॉन का केस था. एनरॉन का लार्जेस्ट केस था जिसके बाद उसके बाद एक दो और कंपनीज भी बैंकक्रप्ट हुई, वर्ल्डकॉम हुई, एनरॉन हुई. तो उसके बाद उन्होंने एक सर्टेन लॉ निकाल दिया कि पब्लिक इशू के लिए कुछ सर्टेन लॉज हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड एंड फॉलोड. जिसके अंदर एक एक्ट आपका था सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 जिसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन की थी which addresses the among other issues the corporate governance, your auditing and accounting, executive compensation and enhanced and timely disclosure of corporate information. ये चीजें according to this act जो है वो जनरल पब्लिक को मिल जानी चाहिए. your disclosure of corporate information, your timely disclosure and enhanced
disclosure, your executive compensation, your accounting, auditing, corporate governance, ये सब चीजें आपके Sarbanes-Oxley Act इंश्योर करता है. Now for public companies, also at companies insiders, auditors and etc. For example, अगर public कोई भी public companies की बात करते हैं जहाँ पे Sarbanes-Oxley Act लगना है, तो वहाँ पे companies insiders, उसके auditors, उसके employees, सब के ऊपर वो act लगता है, and they are equally important to help the state or the federal government to find out the reasons of the bankruptcy of the previous companies and how the company is going to be in the future. Now, key features of the Act include establishment of an oversight board to regulate the public accounting firms that audit पब्लिक कंपनीज. तो वो एक अकाउंटिंग फर्म्स हैं, उनको ओवरसाइट किया जाए जो कि आपकी पब्लिक कंपनीज को ऑडिट करती हैं, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऑडिट से ही आता है ना. अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं वर्ल्ड कॉम की, अमेरॉन की, तो अमेरॉन की केस में क्या है कि आपके एक सर्टन आपके शेयर होल्डर्स थे, उसके अंदर आपका एक बंदा था जो कि सीईओ भी था और कंपनी स्टार्टअप वाला भी था. उसने मिल के एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ मिल के, फेडरिक और समथिंग वाज द नेम ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, आप नेट पे जरूर सर्च करें. उसने अपने ऑडिटर के सासाथ मिल के अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो सारी की सारी जो है वो टेम्पर्ड थी. उन सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे, और वो उनसे जितना भी अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक को जाते हैं, ओरिजिनल में आपकी वो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी. ठीक है, कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन दोज स्टेटमेंट्स, और ऑडिटर के साथ मिलकर उसमें उन्होंने बहुत सारी स्पेशल पर्पस एंटिटीज एसपीईज बनाई हुई थी, और बहुत सारी चीजें थी जिनके वजह से कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती जितना कि उसको स्टेटमेंट्स में शो हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होती थी. तो द बेनिफिट इज टू द शेयर होल्डर्स. तो शेयर प्राइस उसकी अच्छी रखने के लिए उसने एक्ट किया हुआ था, पर ऑफ कोर्स दैट डजंट लॉन्ग लास्टेड लॉन्ग. उसमें जो उसका ऑडिटर और सब लोग थे वो पकड़े गए, और लेटर उनको बहुत सजाएं हुई, और इन दैट केस योर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा in case of finding out that Enron is going to be bankrupted. Now ऐसे टाइम में जब वो बहुत ज्यादा इश्यूज हुए, तब स्पेसिफिकली ये सर्बन-ऑक्सले एक्ट आया, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कुछ चीजें डिफाइन की कि क्या क्या चीज वो होनी चाहिए और क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट और डायरेक्ट प्लेसमेंट, द सेल ऑफ एन एंटायर इश्यू ऑफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू वन परचेजर और अ ग्रुप ऑफ परचेजर्स. That means कि आप इसको डायरेक्ट प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. द सेल ऑफ एंटायर इश्यू ऑफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू वन परचेजर और ग्रुप ऑफ परचेजर. इसमें क्या करती है कंपनी कि अपने जितनी भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज होती हैं वो सारी बेचने की कोशिश करती है टू द परचेजर ऑफ अ ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ परचेजर्स. तो जितने भी ग्रुप ऑफ परचेजर्स या जनरल परचेजर्स होते हैं, दे आर डूइंग दिस प्राइवेट प्लेसमेंट. नाउ इट एलिमिनेट्स द अंडरराइटिंग फंक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर. कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर को स्पेसिफिकली कोई अंडर राइटर होना जरूरी नहीं है. ये चीज खत्म करके उन्होंने जनरली और पब्लिक ये चीज कंसिडर कर ली है कि आपके जितने भी शेयर्स इश्यू किए जाएंगे वो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हो सकते हैं. Now the dominant private placement lender is in this group is the life insurance category. Your pension funds, your bank trust departments are all are very active as well. जिसके अंदर आपके लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी क्या है कि वो आपकी कंपनी की इंश्योरेंस करती है और उसका आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है. That is your private placement, जिसमें आपके शेयर्स को इशू करने अगेंस्ट दैट थिंग वो आपके इंश्योरेंस कंपनी को आप अपना शेयर होल्डर बना लेते हो. Let's look at some of the features of the private placement. It allows the firm to raise funds more quickly. ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ज्यादा जल्दी अपने शेयर्स बेच सकते हो. It eliminates the risk with respect to timing. उसको कोई टाइमिंग का डर नहीं होता कि जी इस टाइम पीरियड के अंदर खत्म कर दें. It eliminates Security and Exchange Commission regulation of the security. कि एक तो सीसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट कर ली जाती है, तो कोई रूल्स भी फॉलो नहीं करने पड़ते. टर्म्स कैन बी tailored to meet the needs of the borrowers. तो देखा जा सकता है कि ऐसी कुछ टर्म्स क्रिएट कर ली जाएं कि आपके borrowers की नीड जो है वो फॉलो अप हो सके. Now flexibility in borrowing smaller amounts more frequently rather than larger than a single large amount. तो in borrowing small amounts more frequently, थोड़ा करके आप उनको बोरो करो, या उससे ज्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि आप सिंगल लार्ज अमाउंट लो, एंड इट शोज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी.
Now let's look at the private placement and other developments over the time. The first thing is your event risk. The risk that existing debt will suffer a decline in credit worthiness because of the issuance of additional debt securities, usually in connection with the corporate restructuring. तो normally ऐसा ही होता है कि उसकी credit worthiness को नहीं मतलब कोई इतना ज़्यादा क्योंकि decline था वो उसको नहीं notice किया गया तो that because of the issuance of the additional debt securities, that is risk involved. Now qualified institutional buyers होते हैं QIBs, eligible purchasers by Security and Exchange Commission, Security and Exchange rule. ये Security and Exchange Commission जो USC की उसका rule है 144A of previous securities from a private placement without having to go through a public market registration. तो बजाय इसके कि public market में जाया जाए उसकी registration की जाए legal forms किया जाए और then they move to the general market, तो इससे बेहतर है कि वो directly general market में जाके उसने उसका सिर्फ एक जो है उसमें वो चेंजेस ले आए हैं कि क्या है कि बजाय इसके कि बार बार जाना पड़े को एक इंस्टीट्यूशनल बायर है और जो कि हमारे सारे शेयर्स खरीद लेगा तो उसके अंदर दोबारा किसी भी चीज़ों की बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. Now, private placement with the registration rights, it combines a standard private placement with a contract requiring the issuer to register the securities with the SEC for possible resale in the public market. That means it combines the standard private placement with a contract requiring the issuer to register the securities. तो securities को register करने और आपकी contract requiring the issue से के बीच में एक standard create करता है that SEC for possible resale in the public market, वो SEC आपको help out कर देगी to resale. Underwriting rule number 144A, private placement, the issuer sells its securities initially on an investment banker that resells them to same institutional buyers that are candidates for a higher private placement. Often includes the registration rights. कुछ registration right होता है कि यहाँ से खरीदा और वहाँ जाके बेच दिया. Now let's look at another topic, that is an initial offering, and we are dealing with the initial financing of venture capital. Wealthy investors and financial institutions are the primary markets of funds for a new enterprise. Now, आपके जितने भी primary markets या primary providers of the funds होते हैं for a new enterprise, usually your common stock, they are the wealthy investors and financial institutions are the private providers of the funds. The Rule 144 and 1933 Act require private placed securities to be held for at least 2 years to be registered before they can be released. तो 2 साल और resold, तो 2 साल तक रखने हैं, उसके बाद register होने के बाद आप उसको बेच सकते हो. Now let us talk a privately placed common stock that can be immediately sold. Private placed common stock that can be immediately sold under SEC Rule 144A. However, latter stock could be sold to qualified institutional buyers without a waiting period. Now the next thing about your private placement and other developments is your private placement with registration rights. It combines a standard private placement with a contract requiring the issuer to register the securities with the SEC for possible resale in the public market. That means कि वो एक अपने standard private contract placement को क्या करता है, combine किस तरह से करता है कि they require their contract to be registered to the SEC for their public issue. क्या publicly issue किया जाए उसके लिए register किया जाता है आपके private placement को उठा के registration rights में डालने का. Then there is an underwritten rule 144A private placement जिसके अंदर the issuer sells its securities initially to an investment bank that resells them to the same institutional buyers that are candidates for a regular private placement and often includes registration rights. अब इसमें क्या होता है कि there is an underwritten private placement जिसके अंदर जो भी issuer होता है वो बजाय इसके किसी एक इंस्टीट्यूशन को बेचने या इंस्टीट्यूशनल बायर को बेचने के बजाय वो एक सर्टेन अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर को इंक्लूड करता है. वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को जाके अपनी सारी सिक्योरिटीज बेच देता है. वो इन्वेस्टमेंट बैंकर देन सेल आउट द सिक्योरिटीज टू द बायर्स. वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसको पहले से आपकी कंपनी ने बेचना था, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कि जो दो बिटवीन एक इंस्टीट्यूशनल जो कि फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी थी और आपकी वो थी ताकि उसको शेयर होल्डर्स में लेकर आना था, उसको डायरेक्ट बेचने के बजाय वो बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर को इंक्लूड करके और फिर बेचता है और इसमें एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है.
ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट में हो सकता है ना. लेट्स लुक एट इनिशियल फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटल. Wealthy investors and financial institutions are the primary providers of the funds to the new enterprises. जितनी भी अब हम ये देखते हैं कि जब हम इशू कर रहे हैं तो वो कौन से लोग हैं जो हमारी सिक्योरिटीज खरीद रहे होते हैं. वो बेसिकली आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड योर वेल्दी इन्वेस्टर्स, दोज इन्वेस्टर्स हु आर willing to invest a huge amount of dollars, rupees, whatever the money is, money का जो भी आपका यूनिट है. Now they are usually common stock की सब्सक्रिप्शन या उसको खरीदने के लिए आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. Now Rule 144 and the 1933 Act जो कि अभी हमने पढ़ा है, that requires privately placed securities to be held for at least 2 years or to be registered before they can be resold. उनको दोबारा से बेचने के लिए या तो वो 2 साल तक आपके पास हो, otherwise they must be registered in order to be resold. Then there is a letter stock which is privately placed common stock that cannot be immediately sold. वो privately held था जिनको रख लिया कि जी ये ऑन द शेल्फ, जैसे हमने कहा था कि ऑन द शेल्फ हमने प्राइवेटली प्लेस्ड कर ली अपनी सिक्योरिटीज और वो कहा यह जाता है कि 2 साल के बाद उनको अभी मैंने उसको रजिस्टर करा लिया और 2 साल बाद में उसको बेच दूंगी. तो दे बेसिकली रिक्वायर्ड कॉमन स्टॉक दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली रीसोल्ड, उसको हम लेटर स्टॉक भी कहते हैं. लेट्स हैव इनिशियल फाइनेंसिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है तो हमने क्यों न्यू वेंचर कैपिटल देखा था. लेट्स हैव एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. द ऑफरिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी for the very first time to the general public is your initial public offering. जो बिल्कुल initially first time आप अपनी general public को shares issue करते हो. Now it is often prompted by your venture capitalist who wish to realize a cash return on their investment. अब जितने venture capitalist होते हैं, for example your large investors, your institutional investors, your financial institutions and all other people who are very much interested in the investment of the company, they go for this initial public offering और initial public offering की securities को वो खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं. क्योंकि उनको कैश रिटर्न्स चाहिए होते हैं. Now founders of the firm may wish to go through an IPO to establish a value of their firm. For example जैसे ट्विटर की बात थी तो ट्विटर में जो इनिशियल आपके फाउंडर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी फाउंडर्स होते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाई होती है. अब जैसे ट्विटर की बात है तो वो 4 लोग थे, उन 4 लोगों ने कंपनी क्योंकि फाउंड की थी, ठीक है, उन 4 लोगों ने फाउंड की और अभी तक तो वो एज प्राइवेट कंपनी थी. नाउ दे वांट टू गो एज पब्लिक. तो वो जो फाउंडर्स होते हैं उनका वो हो सकता है वो चाहते होंगे कंपनी की वैल्यू क्रिएट करने के लिए दे माइट हैव डिसाइडेड टू गो टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ना, और वो अपने पास कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग्स जो है वो अपने पास ही रखते हैं. नाउ देयर एग्जिस्ट अ ग्रेटर प्राइस अनसर्टेनिटी विद एन आईपीओ देन एनी अदर पब्लिक स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि डेफिनेटली उधर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है. देयर इज एन ओवर प्राइस्ड एंड अंडर प्राइस्ड स्टॉक एज वेल. इन केस ऑफ फेसबुक जो कि थोड़ा रिसेंटली इन 2009 में इश्यू हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने मई था और जून था 2009 या फरवरी था, जिसके अंदर उन्होंने जब अपने शेयर्स इशू किए तो दे हैव अंडर प्राइस्ड देयर स्टॉक. Yes, they had overpriced honest, they have overpriced their stock. उन्होंने बहुत हाई प्राइस लगा दी थी, जिसके बाद जब उनका स्टॉक बिकना शुरू हुआ तो that was actually basically underpriced. तो जब हम ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर ने अभी किया, उन्होंने they have learned from the Facebook mistakes and what they do is they did set a price but that was underpriced. उन्होंने बहुत हाई प्राइस नहीं रखी, underpriced रख दी, जिसकी वजह से उनके $26 रखी, जिसने फर्स्ट डे जब पहली दफा उसकी ऑफरिंग ओपन हुई तो that went off to the 50 point something dollars, then it moved back to the 45. जबकि 50 बेस को हाई 50 से ऊपर जाना चाहिए था, वो एकदम ओपन हुआ तो 50 पे गया और उसके बाद जब क्लोजिंग हुई उस डे की तो 45 पे चला गया. दैट मीन्स इट इज अंडर राइट. अगर ये पहले ही इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रख देते, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी प्राइस ये रख देते 30 या 32 तो उससे वो 50 पे जाता है, देन इट मूव्स टू 45. या पहले ही इसकी अगर 45 रखी होती 50 पे जाकर 45 पे आता तो दैट वाज एन अंडर प्राइस, या वो कोई इतना ह्यूज थोड़ा काइंड ऑफ रिस्क एंड लॉस इन्वॉल्व ना होता. नाउ ग्रेटर प्राइस अनसर्टेनिटी इसी आईपीओ के केस में होती है कि पता नहीं ओवर प्राइस्ड हो जाए, अंडर प्राइस्ड हो जाए और वेदर इट इज गोइंग टू बी सेल्ड आउट और नॉट, फुल सब्सक्रिप्शन होती है कि नहीं होती. Now let's look at the signaling effects, जिसके अंदर we have relative abnormal stock returns for a new equity issue. अगर आप ये देखें कि आपके horizontal analysis पे your time around announcement है जो कि days के हिसाब से, and you have on the y axis you have cumulated average and abnormal return in percentage. Now अगर आप ये देखें कि आपके जिस तरह से days increase होते जा रहे हैं, जिस तरह number of days increase होते जाएंगे उस तरह आपकी returns cumulative return जो है वो decrease होते जा रहे हैं. इनको हम
एबनॉर्मल स्टॉक रिटर्न्स कहते हैं फॉर अ न्यू इक्विटी इशू के वो डिक्रीज होते हैं। नेगेटिव स्टॉक प्राइस रिएक्शन टू कॉमन स्टॉक और कन्वर्टेबल इश्यूज एंड स्ट्रेट डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक डू नॉट टेंड टू शो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स। जो आपके जितने भी डेट या प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं वो इस तरह की कभी भी इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो इसको हम सिग्नलिंग इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि इक्विटी के नंबर ऑफ डेज से इंक्रीज करके एवरेज रिटर्न जब डिक्रीज हो रहा होता है, दैट इज गिविंग यू अ सिग्नल कि इस तरह से आपकी कंपनी को अपने शेयर्स की प्राइस को ऐसे करना चाहिए, या शेयर प्राइस आपको बेसिकली क्या सिग्नल दे रही होती है अबाउट द कंपनी। Now let's look at possible explanation of the forward price reactions. ये जो price reactions हैं within with the changes in the days किस तरह से आते हैं। Now expectations of the future cash flows. The unexpected sale of securities may be associated with the lower than expected operating cash flows and interpreted as bad news. Hence the stock price might suffer accordingly. देखिए जी, जो हमें unexpected sale of securities की जाती है तो उसमें आपकी बजाय इसके हम ये प्रेफर करें कि एकदम ही विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपकी सिक्योरिटीज जो है वो बेचना शुरू कर दी है, तो डेफिनेटली देयर इज अ सप्लाई ऑफ शेयर, सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो लोअर एक्सपेक्टेशन आपके जितने भी लोअर देन द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जितने भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है उससे कम, दैट इज एसोसिएटेड विद द लोअर कैश फ्लोज, जो कि एक्सपेक्ट होता है उससे भी कम होता है, एंड इंटरप्रेटेड एज अ बैड न्यूज, एंड हेंस उसकी प्राइस, स्टॉक प्राइस जो है वो सफर करती है एंड इट मूव्स डाउन एज वेल मोर। नाउ एसिमेट्रिक और अनइक्वल इंफॉर्मेशन होती है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज अवेलेबल टू योर जनरल पब्लिक, लेकिन उसमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेट्स सपोज इफ आई एम अ कंपनी एंड आई एम गोइंग टू ऑफर द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, तो I am as company I know each and everything about my company, about the operations, about the profits, and किस प्राइस पे कंपनी के शेयर्स इशू होने चाहिए, क्या इसमें बेनिफिट है और क्या इंटेंशन है टू शेयर्स द इशू द शेयर्स। लेकिन जो आपके वो लोग इन्वेस्टर जो कि जनरल पब्लिक में बैठे हुए खरीद रहे हैं, उनके पास ये प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके पास तो वही इन्फॉर्मेशन है जो कि that has been made available to the general public, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है। तो इसको एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि एक साइड के पास आपके पास जरा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। Now potential investors have less information than the management, particularly for common stock, कि मैं एज अ मैनेजमेंट मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट जो आपका पब्लिक इन्वेस्टर्स जो है उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो दिस इज योर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। Now exchanges of different types of securities shows that increase in the financial leverage are associated with the positive abnormal returns, कि जितना ज्यादा आपकी जब भी आप अपनी सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हो उसमें फॉर एग्जांपल अपनी डेट टू कन्वर्ट कर देते हो शेयर्स, या शेयर से कन्वर्ट करते हो डेट सी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो उसमें इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो आपके पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न्स होते हैं। लेकिन जितना डिक्रीज इन योर फाइनेंशियल लिवरेज होता है दैट डील्स विद द नेगेटिव एबनॉर्मल रिटर्न्स। सो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपनी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को बेहतर यूटिलाइज करते हो। नाउ दैट वाज अबाउट योर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड इनिशियल price reactions. Let's move on to the secondary market. The secondary market is basically, you all know that outstanding issues or the existing securities in the market are basically those सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, उनसे उनकी सेल एंड परचेज और उनकी ट्रेडिंग जो है वो जिस भी मार्केट में होती है उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। नाउ परचेजेस एंड सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स अकर इन द सेकेंडरी मार्केट। द ट्रांजैक्शंस इन द सेकेंडरी मार्केट डू नॉट प्रोवाइड एडिशनल फंड्स टू द फर्म, उसमें फर्म इन्वॉल्व नहीं होती। मेरी अगर कंपनी है तो इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, तो एक बायर है एक सेलर है, वो उसको खरीदता है, इन्वेस्टर ए जो है वो सेल करता है, इन्वेस्टर बी खरीदता है, इन्वेस्टर बी जाके दोबारा सेल आउट कर देता है, तो इन्वेस्टर सी फॉर सम कैपिटल गेन्स जो अर्निंग करनी होती है, और इन्वेस्टर सी जो है वो आगे कहीं बेच रहे हैं, वो खरीद ले, तो वो जो इस तरह की ट्रांजैक्शन इसमें आपकी कंपनी कभी इन्वॉल्व नहीं होती है और कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होता। द सेकेंडरी मार्केट इंक्रीजेस द लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग एंड लोअर्स द रिक्वायर्ड रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। लिक्विडिटी क्योंकि दे आर इजीली कन्वर्टेबल टू कैश एंड इट रिक्वायर्स लोअर्स द रिक्वायर्ड रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर, डेफिनेटली उनकी रिक्वायर्ड रिटर्न कम हो जाता है। द कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस लाइक द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज प्लस द ओवर द काउंटर market, your Nasdaq, your Karachi Stock Exchange, your Islamabad Stock Exchange, Lahore Stock Exchange, all these examples all these are the examples of your organized exchanges, which are the example of your secondary market. Now that was all about your today's lecture. Let's have a brief summary of your lecture. We studied about the standby arrangements. वो arrangement है whenever there is an unsubscribed, unsold
number of securities that has been offered to the general public, then there should be a standby arrangement of the investment banker or a group of investment bankers. For over subscription privilege, there might be an option कि जब अभी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए गए हैं, उसमें से अगर 500,000 शेयर्स थे, 450,000 शेयर्स इशू कर दिए गए हैं, जो 50,000 रह गए उनमें से इन्वेस्टर जो या शेयर होल्डर्स हैं, दे आर प्रेफरिंग टू बाय मोर शेयर्स ऑफ 80,000. वो कहते हैं कि 80,000 शेयर्स खरीदने, तो 5/8 टाइम ऑफ योर सिक्योरिटी जो है वो उनको दिया जाता है. दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन की वो ज्यादा शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं. तो रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफरिंग्स हमने देखी है, जिसके अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट्स थी, कुछ लॉस थे 1933 के. देन सर्बन-ऑक्सले एक्ट था. इसमें हमने ये देखा है कि रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट आपकी रिक्वायरमेंट होती है बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसके पास कंपनी को रजिस्टर करना होता है. अगर वो ठीक नहीं होती तो उसको विद ऑल द डेफिशिएंसीज एंड डिस्क्रिप्शंसीज विद कमेंट लेटर वापस कर दिया जाता है और कंपनी उसको अमेंड करके वापस भेजती है. तब तक जब तक कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट इफेक्टिव नहीं होती, तब तक के लिए रेड हेरिंग, दैट इज इन रेड इंक, उसको जो है कंप्लीटली एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है टू योर जनरल पब्लिक और योर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. रेड हेरिंग उसको कहते हैं. जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट विद अमेंडमेंट वो इफेक्टिव हो जाती है विद इन 20 days. और टॉमस्टोन एडवर्टाइजमेंट वो होती है कि आपके एटलीस्ट 2 to 3 न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, डिस्क्राइब विद ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंपनी एंड इट्स नंबर ऑफ शेयर्स एंड शेयर प्राइस पर शेयर, और जो भी आपके ऑफर इशू है उसकी प्राइस इशूइंग या ऑफरिंग प्राइस जो होती है उस वो एडवर्टाइजमेंट में देते हैं. उसको टॉमस्टोन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं. दैट इज इफेक्टिव आफ्टर द 20th डे ऑफ फाइलिंग योर रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस. वी हैव अ प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है. देन वी हैव ब्लू स्काई लॉज एंड वी हैव सर्बन-ऑक्सले एक्ट, जिसके अंदर फ्यू और मोर रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं. और सर्बन-ऑक्सले एक्ट बेसिकली आपकी बैंकरप्सी के बाद स्पेसिफिक उस कंपनीज थी जो कि बैंकरप्ट हो गई थी, इंक्लूडिंग योर एनरॉन, वर्ल्डकॉम एंड फ्यू मोर कंपनीज. उसके बाद यूएसए में ये सर्बन-ऑक्सले एक्ट आया था, जिस अकॉर्डिंग टू विच आपकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके ऑडिटर्स के ऊपर जो है वो ओवरसाइट किया जाता है बाय योर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कि वो कौन सी पब्लिक कंपनी को ऑडिट करेंगे. और कुछ और सर्टेन एक्ट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं और देखा जाता है कि कंपनी किस तरह से कर रही है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक दे रही है एंड वेदर द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट और नॉट. देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसके अंदर ये कहा गया कि आपके कोई भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसके साथ कंपनी जो है वो डायरेक्टली अपने पब्लिक इशू करना चाह रही है. एंड देयर आर सर्टेन फ्यू मोर थिंग्स जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट्स में कंसिडर की जाती हैं फॉर रजिस्ट्रेशन केसेस. नाउ इनिशियल फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर वेंचर कैपिटल आ जाता है. अगर आपका वेंचर कैपिटल किस तरह से अवेलेबल है उसके हिसाब से किस तरह इनिशियल फाइनेंसिंग की जाएगी. एंड देन वी हैव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके थ्रू आपकी इनिशियल फाइनेंसिंग की जाती है कंपनी की, जिसके अंदर कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स इशू करती है, दैट इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. सिग्नलिंग इफेक्ट है, जिसके अंदर पब्लिक को इशू करने के बाद जो भी प्राइस विद इन नंबर ऑफ डेज आपकी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है, दैट इज अ सिग्नलिंग इफेक्ट ऑफ योर न्यू इशू. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंडरी मार्केट, दैट इज द मार्केट विच वेयर योर transaction of already existing or outstanding shares takes place, and the company basically deals with does not involve in the secondary market or does not take benefit of these transactions from the secondary market. इसके अंदर सिर्फ आपकी private और investors होते हैं जो कि buying and purchasing of your transaction कर रहे होते हैं, but it increase the liquidity of the securities. और इसके अंदर basically आपकी secondary market, all the exchanges which in the world that includes the New York Stock Exchange, London Stock Exchange, your over the counter market, your Nasdaq, your Karachi Stock Exchange, your Islamabad Lahore Stock Exchange, all are the example of your secondary market. Now that was all about your today's topic. That was remaining topics of your capital markets, and your chapter ends for capital market. Your chapter ends. Now we will be moving on to another chapter in our next lecture. Thank you.